Greetings students. In this module, we will discuss about the three chemical properties of non-metal. First is reaction of non-metal with the water, reaction of non-metal with dilute acid, and the third one is reaction of non-metal with the hydrogen. So during the chemical properties of metal, we discussed metal react with the water to produce metal hydroxide and they release the hydrogen gas. Similarly, metal react with the dilute acid to produce metal salt plus hydrogen gas. There we discussed about how they react with the acid or how they react with the water, or how metal displays hydrogen from the dilute acid or hydrogen from the water. So we have already discussed the reason why metal react with the water to produce hydrogen gas, why metal react with the dilute acid to give hydrogen gas. So now our chemical reaction is reaction of non-metal with the water. So non-metals do not react with the water to give हाइड्रोजन गैस. की नॉन मेटल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और क्या देते हैं, ना ही वो हमको क्या देती है, हाइड्रोजन गैस. So most of the non-metal are unreacted toward the water. As you can see, कार्बन कोल है आपका, उसको आप पानी में डिप करके रख दो, कुछ नहीं होगा. फॉस्फोरस है, पानी में डाल दो, कुछ नहीं होगा. सल्फर है, पानी में डाल दो, कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. So generally most of the non-metals are unreactive towards the water and they do not react with the water to give hydrogen gas. But there is one highly reactive non-metal that can react with the water. For example, here I have written two chemical reaction of fluorine with the water. As you can see in the first reaction, fluorine react with the water because fluorine is highly reactive non-metal. तो fluorine water के साथ react करती है और क्या बनाती है, mineral acid, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और you can write हाइड्रोजन फ्लोराइड aqueous solution. लेकिन साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन नहीं निकल रही है, साथ में क्या निकल रही है, ऑक्सीजन. सिमिलरली when the concentration is different, यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 2 हैं, और वाटर कितने हैं, 2 हैं. इधर कितने फ्लोरीन है, 3 है. इधर कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, 3. In that case one product is same, hydrogen fluoride, but the other product is different. Second reaction में क्या बन रहा है, ओजोन. You will rarely find this reaction in your board exam, but you should know about this कि highly reactive non metal कौन सी होती है और वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट है. लेकिन जनरली ऑल द नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर अनरिएक्टिव टुवर्ड द वाटर. दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, और दे डू नॉट, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर to produce hydrogen gas, because question can be asked in different manners. क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्यों नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि why non metal are not able to displace hydrogen from the water to produce hydrogen gas. So reason I will write here for this. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन और इसका रीजन दोनों सेम है. Same in case of reaction of non-metal with the dilute acid. Non-metals do not react with the dilute acid to give hydrogen. नॉन मेटल जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती और ना ही वो हाइड्रोजन गैस देती हैं. सिमिलरली non-metal cannot displace hydrogen from the dilute acid because to produce हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, ये लेट अज्यूम हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या देगा, H आयन प्लस क्लोराइड आयन. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन,
और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन एटम, और दो हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल कैन नॉट lose electron, they are electron acceptor. So non metal क्या होते हैं, they are electron acceptor, as you can see in the electronic configuration of any of the non metal. For example, you can take the example of nitrogen. Atomic number of nitrogen 7, electronic configuration Kl2,5. So as you can see in the electronic configuration Kl2,5. अब इसके by which way it can complete its octet, कि L shell जो है इसकी लास्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए for this table 8. तो कैसे कर सकता है, या तो 5 लूज कर दे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, या 3 गेन कर ले. So most of the non-metals have tendency to gain electron, mean to accept electron. So non-metals generally accept electron. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास डेफिशिएंसी है, तो वो हाइड्रोजन को कहाँ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जो एसिड में से निकलेगा या वाटर में से निकलेगा, H आयन, क्योंकि हाइड्रोजन तभी बनती है जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. तो नॉन मेटल क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. हाइड्रोजन आयन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन. तो नॉन मेटल तो दे ही नहीं रहा उसको इलेक्ट्रॉन जिससे वो हाइड्रोजन गैस बनाए. दैट इज वाई non-metal cannot displace hydrogen from the dilute acid, or they cannot displace hydrogen from the water. तो reason is same for both third and fourth. कि third और fourth दोनों का reason क्या है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते. अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन को गेन करने के लिए मिलेगा नहीं. तो हाइड्रोजन आयन को गेन करने के लिए मिलेगा नहीं, तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन तभी होती है जब H आयन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा. और मेटल के अंदर टेंडेंसी क्या होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर. तो मेटल डोनेट कर पाते हैं, H आयन को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस. सेम इन केस ऑफ वाटर. सो मेटल कैन रिएक्ट विद द वाटर एज वेल एज डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट नॉन मेटल डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इवन विद द वाटर एंड डाइल्यूट एसिड. व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. दे डू नॉट गिव electron to the H ion of dilute acid or water to produce hydrogen gas. So you can write like this, or you can write this statement in the answer. Next chemical property is reaction of non-metal with the hydrogen. कि non-metal hydrogen gas के साथ कैसे react करते हैं. ये क्या है, non-metal. hydrogen क्या है, non-metal. So we have already discussed कि when non-metal react with the other non-metal, the nature of compound is covalent in nature. क्योंकि non-metal क्या है, हाइड्रोजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो भी डोनेट नहीं करने वाला. तो उनके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन. और जब शेयरिंग होती है तो कौन से तरह के कंपाउंड बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड. तो नॉन मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड. तो प्रॉपर्टीज ऑफ दोज नॉन मेटल हाइड्राइड, दे आर जनरली गैसेस इन नेचर और लिक्विड इन नेचर. कि वो जिनकी फिजिकल स्टेट या तो गैसेस होगी, गैसियस स्टेट होगी, या लिक्विड स्टेट होगी. सेकेंड, दे आर कोवलेंट इन नेचर. Because they are covalent in nature, they do not conduct electricity. क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, कोवलेंट कंपाउंड में आयन नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो करंट को कैरी नहीं करते हैं. So that is why covalent compound do not conduct electricity. So examples of reaction of non-metal with the hydrogen gas react with the sulfur, and all of you are aware sulfur exists in सॉलिड फॉर्म. तो हम सल्फर को हीट करते हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. एंड वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज उसकी स्मेल जो होती है बहुत ज्यादा तीखी होती है, पंजेंट स्मेल. तो ये पंजेंट स्मेल उसी तरह से होती है कि जब भी कभी आप कोई ऐसी जगह से निकलो, पास में कोई ड्रेनेज सिस्टम हो, मतलब गटर वगैरह हो, या कोई एनिमल है उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है. तो वो तीखी सी जो स्मेल होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, H2S की वजह से होती है. वहां पे दूसरी गैसेस भी होती हैं, बट वन ऑफ द गैस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इज H2S गैस नियर द ड्रेनेज सिस्टम. सेकेंड एग्जाम्पल इज formation of ammonia. Nitrogen is what, non metal reacting with the hydrogen in presence of iron
as a catalyst. And all of you are aware what is the role of catalyst. Catalyst generally increase the rate of reaction. कि अगर catalyst हम यूज करते हैं तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है, वो रिएक्शन जल्दी हो जाती है at the temperature 723 to 773 Kelvin to form ammonia gas. So you can also write reaction of non metal with the hydrogen. ये दोनों क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है कि ऐसा एग्जांपल दो जिसमें नॉन मेटल से रिएक्ट करे और जनरली वो लिक्विड स्टेट में आए, बट यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और वो क्या बना लेंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क से वाटर. तो जनरली शुरू में वाटर तो गैसियस स्टेट में ही बनता है, लेकिन जब उसको हम ठंडा कर लेते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है. तो ये जो मैंने लिखा है गैसेस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर, गैस एट रूम टेम्परेचर बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो दीज आर दी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करती है और क्या बनाती है कोवलेंट हाइड्राइड. And these are the 3 examples. They can exist in gaseous or liquid state, do not conduct electricity. So H2S, ammonia and water. So I hope these 3 chemical properties are clear to everyone related to the chemical properties of non-metal. Now you can take the screenshot and can write in the fair notebook. So thank you students.